Hello everyone and welcome to my YouTube channel Edu Imagica, the medical mystery education hub. In today's video, we will talk about the body fluids and circulation, that is the chapter number 18 from the class 11th NCERT. Before beginning, if you have not subscribed to our channel yet, then please do hit the subscribe button and click on the bell to turn on the notification so that you don't miss any future updates. So without delay or ado, let's begin. Chapter number 18, Body Fluids and Circulation. You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen, and other essential substances. Also, the waste or harmful substance produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissues. It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells from these cells. So here NCERT is saying that हमने पढ़ा है पहले कि किसी भी एक सेल को हमको क्या देना है, न्यूट्रिएंट्स देने हैं, हमको फूड प्रोवाइड करना है. किसकी फॉर्म में? फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की फॉर्म में या फिर अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स or other substance which help the cell to perform its physiological functions. और हमें उसके साथ साथ क्या करना है? We have to remove the unnecessary or unwanted materials that are being formed in our body during that physiological process so that it doesn't get toxic for our body. And this removal of waste products and intake of the nutrients or the useful substance, they are really essential for our body to function normal. And these all mechanisms are interrelated to each other. If any one of these get affected or any one of these uh, does not function well, then it will lead to the pathological condition. It will lead to some diseases. It will cause the tissue to get damaged or the cell to get damaged, to not work properly, and it will finally lead to the death of the tissue or the cell. And here NCERT says that different group of animals have evolved different methods for their transport. The same thing we learned in the previous video where we talked about the breathing and exchange of gases, that the respiratory system is developed in each of them on the basis of their organization or on the basis of their development. Same case is here in the circulation or the cardiovascular system. NCERT says that simple organisms like sponge, coelentrates circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cell to exchange the substance. ये एनसीईआरटी कह रही है कि जो स्पॉन्ज है और सीलेंट्रेट्स हैं, इनकी क्या करते हैं, ये वाटर सर्कुलेट करते हैं. जैसे हमारी बॉडी क्या करती है, ब्लड सर्कुलेट करती है, ये बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट करती है, वाटर सर्कुलेट करते हैं सराउंडिंग से और अपनी बॉडी कैविटीज के थ्रू. और ये क्या करते हैं, सेल के थ्रू क्या कराते हैं उसका एक्सचेंज. More complex organisms use special fluids with their body to transport such materials. बेंसियाटी कह रही है जैसे सीलेंट्रेट और स्पॉन्ज हो गए, ये बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाती है. वेयरएस कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कुछ स्पेशल फ्लूइड्स यूज करते हैं बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कराने के लिए न्यूट्रिएंट्स को. फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी, वी यूज ब्लड or it is also known as body fluids to provide the nutrients to the cells and the tissues. So in the next line NCERT says that blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms using human for this purpose. Okay, another body fluid, lymph, also helps in transport of certain substances. NCERT is saying that other than the blood के अलावा एक lymph भी एक body fluid है
जो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है. And in this chapter you will learn about the composition, properties of blood, tissue, lymph mechanism, circulation, etc. So in this video we will divide the video into two parts. In the first part we will talk about the blood, its composition, then we will talk about the ABO grouping, we will talk about the RH grouping, then we will talk about the different cells like the formed elements, like we have erythrocytes, WBCs, platelets, and in the next video we will talk about the human circulatory system. We will talk about the electrocardiogram, the cardiac cycle, the regulation and the disorders. Okay, so let's begin with the blood. So NCERT is saying that blood is a special connective tissue that consists of fluid matrix, plasma and formed elements. Now to understand the further language or the further content in the NCERT, let me give you a brief composition of the blood, forming a table. Please note this table as it is and try to memorize it. It will really help you in your upcoming exams. So what we have? We have blood. The composition of blood is being divided into two parts. The blood consists of the formed elements and it consists of plasma. The formed element is about 45, sorry, it's about 45% of the total blood volume, whereas the plasma is 55% of total blood volume. Okay, these formed elements includes different types of cells that are present in the blood. We have RBCs, WBC, and we have platelets. These RBCs are also known as erythrocytes. WBC also known as leukocyte, and platelets are also known as thrombocytes. Okay, and the plasma consists of water and solids. Water is about 92% and solid is about 8%. Okay, now these solids over here, these solids are further divided into, or it consists of the organic part and the inorganic. The organic part are proteins, whereas the inorganic part are mostly ions. For example, sodium, magnesium, calcium, and potassium. Protein is about 7 to 8% and inorganic matter is about 0.9%. These organic part consist of albumins, globulins,
and fibrinogen. The globulins are alpha 1, alpha 2, beta, and gamma. Okay, this was a brief introduction about the composition of the blood. So let's revise really quick. We have blood. Blood consists of formed elements and plasma. Formed element is about 45%, whereas plasma is about 55%. The formed elements consist of different cells present in the blood. We have the RBCs, WBCs, and platelets. RBCs are also known as erythrocytes, WBCs are also known as leukocytes, and platelets are also known as thrombocytes. The plasma contains 92% of water and 8% of solids. These solids consist of organic part and the inorganic part. The organic part are mostly proteins, whereas the inorganic part are ions. For example, sodium, magnesium, calcium, and potassium. The organic part is about 7 to 8%, whereas the inorganic part is about 0.9%. The organic part, that is the proteins, they consist of albumins, globulins, and fibrinogen. The globulins are of various types. We have the alpha 1, alpha 2, beta, and gamma. So this was all about the composition of blood. So now let's see what NCERT is saying. First we'll talk about the plasma. Plasma is a straw-colored viscous fluid consisting nearly 55% of the blood. See, we read this. 90 to 92% of the plasma is water and proteins contribute about 6 to 8%. Fibrinogen, globulins, and albumins are major proteins. Okay, we talked about this in this chart. Fibrinogens are needed for clotting or coagulation of blood. Globulins primarily are involved in defense mechanism of the body, and the albumins helps in osmotic balance. Plasma also contains a small amount of minerals like sodium, calcium, magnesium, bicarbonate, chloride, etc. Glucose, amino acid, lipids, etc. are also present in the plasma, as they are always in transit. Factors for coagulation or clotting of blood are also present in plasma in an inactive form. Plasma without the clotting factor is known as serum. So point to note here, this is really important. Plasma without the clotting factor is called serum. Plasma minus clotting factors is serum. ओके, इसके बारे में पढ़ लिया हमने ऊपर चार्ट में, जो चार्ट बनाया था उसने कवर कर लिया इस पूरी एनसीईआरटी की लैंग्वेज को. अब आगे पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में. Erythrocytes, leukocytes and platelets are collectively called formed elements. ये भी पढ़ लिया हमने. And they constitute nearly about 45% of the blood. Erythrocytes or red blood cells are the most abundant of all the cells in the body. A healthy adult man on an average 5 million to 5.5 million of RBC per cubic millimeter of blood. RBCs are formed in the red bone marrow in adults. RBCs are devoid of nucleus in most of mammals and are biconcave in shape. They have a red-colored iron-containing complex protein called hemoglobin, hence the color and the name of the cell. A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. RBCs have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen, that is known as the graveyard of RBC.
This is really important. This is also important. Lifespan of RBC. This is also important. This is also important. Normal level of RBCs in blood. And RBCs of devoid of nucleus. So what happened? Suppose this is our RBC. Okay, it contains hemoglobin. Okay, this hemoglobin is basically red color. Due to this, RBCs appear to be red. Okay, सो यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा कि जैसे कि जो इरिथ्रोसाइट है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। एक हेल्दी ह्यूमन एडल्ट के पास 5.5 5 to 5.5 into 10 to the power 12 per liter, that is the normal level of RBC is 5.5 multiplied by 10 to the power 12 per liter, or we can say that 5 million to 5.5 million per cubic millimeter. Okay, and RBC is devoid of nucleus so that it can carry more and more amount of oxygen in it. In a healthy individual, there is about 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml of blood. Okay, and the lifespan of RBC is 120 days. After that, RBCs get destroyed by the spleen. Spleen is also known as the graveyard of RBCs. So this was all about the erythrocytes according to the NCERT. At this point, I will request you to focus on NCERT as much as you can. If you get time after that, then you can go for additional information about each and everything about them. You can follow your coaching modules, and you can also follow some different books that was used for the state PMTs early on. So till that time, please just finish the NCERT as many time as you can. Okay, so now let's move to the leukocyte. The leukocytes are also known as white blood cells as they are colorless due to the lack of hemoglobin. आरबीसी में क्या था? आरबीसी में थी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन का कलर होता है रेड, और हीमोग्लोबिन क्या कैरी करती है? ऑक्सीजन। लेकिन ल्यूकोसाइट्स के अंदर वो नहीं होती, तो ल्यूकोसाइट का फंक्शन भी नहीं होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, they are nucleated and are relative lesser in number, which average is about 6000 to 8000 cubic millimeter. ओके, ये एनसीईआरटी कह रही है कि इनके पास न्यूक्लियस भी होता है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी के पास क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है, और ये आरबीसी के मुकाबले कम भी होती है। आरबीसी कितनी थी? 5 से 5.5 मिलियन, लेकिन ये कितना है? 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। Leukocytes are generally short-lived. We have two main categories of leukocyte or WBCs, that is granulocytes and agranulocytes. यहाँ एनसीईआरटी कह रही है कि ल्यूकोसाइट, जैसे आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 डेज थी, लेकिन ल्यूकोसाइट की क्या होती है? उससे कम होती है। दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, एंड WBCs are divided into two main groups. We have the granulocytes and the agranulocytes. WBC are divided into two groups. We have the granulocytes and we have the agranulocyte. Neutrophil, basophil and eosinophil. These are the cells under granulocyte, whereas the lymphocyte and
monocytes. These are agranulocytes. So let's see what NCERT says. Neutrophils, eosinophils and basophils are different types of granulocytes, while lymphocyte and monocytes are the agranulocytes. Okay. Neutrophils are the most abundant cell of total RBC or total WBCs, that is about 60 to 65%, and basophil are the least, that is 0.5 to 1% among them. यहाँ सीआरटी कह रही है कि WBCs जो है वो दो टाइप की होती हैं, वो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं और वो एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। जो ग्रेनुलोसाइट होती हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स आती हैं, बेसोफिल्स आती हैं और यूजनोफिल्स आती हैं। लेकिन जो एग्रेनुलोसाइट है उसके अंदर लिम्फोसाइट आती है और मोनोसाइट आती है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है जितने भी सेल्स हैं एनसीईआरटी के, डब्ल्यूबीसी के जितने भी सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी के, उनके अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स। कितना होता है ये, 60 to 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। अब ये हो गया सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे लीस्ट अबंडेंट कौन सा होता है, वो होता है बेसोफिल। वो कितना होता है, 0.5 to 1%। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स are phagocytic cells which disrupt foreign organism entering the body। अब एनसीईआरटी कह रही है कि जो मोनोसाइट्स हैं वो कितने होते हैं, 6 to 8%। न्यूट्रोफिल कितना, 60 to 65, बेसोफिल कितना, 0.5 to 1, मोनोसाइट कितना, 6 to 8%। अब एनसीईआरटी ने कहा है कि जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है वो क्या है, फेगोसाइटिक सेल्स हैं। ये फेगोसाइटिक सेल्स क्या करते हैं, कभी भी कोई बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी जो बॉडी के अंदर एंटर करती है तो ये बेसिकली क्या करते हैं, उसको अटैक करते हैं और उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं बॉडी से, या उसको खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं उसको एक तरीके से। बेसोफिल्स secrete histamine, serotonin, heparin, etc. and are involved in inflammatory reactions। ये एनसीईआरटी कह रही है जो बेसोफिल्स हैं, बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन एलर्जी रिएक्शन। जब भी कोई एलर्जी होती है बॉडी में, फॉरेन बॉडी आती है, तो ये फाइट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म के साथ। और ये क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन रिलीज करते हैं और हिपैरिन रिलीज करते हैं। ठीक है। और जो इजनोफिल है, इजनोफिल कितना है, इजनोफिल 2 से 3% होता है टोटल आरबीसी का, टोटल डब्ल्यूबीसी का। एंड इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इन्फेक्शन से बचाना किसी भी बॉडी को। एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शंस। lymphocyte is about 20 to 25%, and there are two types of lymphocytes. We have the B lymphocytes and the T lymphocytes. Both B and T lymphocytes are responsible for immune response of the body। अब एनसीईआरटी कह रही है कि दो लिम्फोसाइट होते हैं हमारे पास, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और इनका काम क्या होता है, इम्यून रिएक्शन में हेल्प करती है। कभी भी हमारी बॉडी की, आपको पता होगा कि इम्यूनिटी होती है जिससे कि हमारी बॉडी फाइट करती है वायरसेस से। किसी की इम्यूनिटी वीक होती है तो जल्दी बीमार पड़ जाता है, लेकिन किसी की इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है तो वो उससे फाइट कर लेता है, उसको सिम्टम्स नहीं आते। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, आपने देखा होगा कि कोरोना के अंदर कई पेशेंट जो हैं, कई पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन कई पेशेंट्स की आप देखेंगे जिनको कोरोना हो रखा है, वो कोविड पॉजिटिव है, बट उसके बाद भी उनके अंदर एक इम्यूनिटी है मेंटेन्ड पहले से कि जो वो फाइट कर पा रहे हैं ऑर्गेनिज्म के साथ, और उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं मिलेंगे आपको कोरोना वायरस के। लेकिन उसके साथ साथ जब आप उनकी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, कोविड पॉजिटिव। उनके अंदर उनके वो वायरस से अफेक्ट हो गए हैं, बट दे आर एसिम्टोमेटिक, वेयर एज जिनकी इम्यूनिटी वीक है दे आर सिम्टोमेटिक एज वेल एज कोविड पॉजिटिव। ओके। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। These are cell fragments produced from megakaryocytes, special cell in the bone marrow। ये एनसीईआरटी कह रही है दी प्लेटलेट है, प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, और ये क्या है, स्मॉल सेल फ्रेगमेंट है। ये काय से बनते हैं, मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट क्या है, मेगा कैरियोसाइट एक आप समझ सकते हैं प्रोजेनिटर सेल, या फिर एक सेल जिससे कि आगे ब्लड सेल्स बनते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, बोन मैरो के अंदर। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स अबाउट 1.5 lakh to 3.5 lakh platelets per millimeter cube। Okay, platelets can release a variety of substance, most of which are involved in coagulation or clotting of blood। अब एनसीईआरटी कह रही है प्लेटलेट्स के पास
बहुत ज़्यादा ऐसे सब्सटेंस मिलेंगे जो क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, जब खून निकलता है आपका, मतलब हाथ कट जाता है, अब देखते हैं कुछ टाइम बाद ब्लड आना रुक जाता है। अगर ये मैकेनिज्म नहीं होती आपके पास क्लॉटिंग की, तो आपको क्या होता, ब्लड बहता रहता बहता रहता बहता रहता, और सारा ब्लड आपका लॉस हो जाता है और आप डेथ हो जाती है आपकी। लेकिन हमारे पास बॉडी के अंदर कुछ इनबिल्ट मैकेनिज्म ऐसी हैं जो आपकी हेल्प करती हैं कोगुलेशन में या फिर हीमोस्टेसिस में। A reduction in their number can lead to clotting disorders which will lead to excessive loss of the blood from the body. सेम चीज एनसीईआरटी ने बोली यहाँ पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। As you know, blood of human beings differ in certain aspects, though it appears to be similar. Various types of grouping of blood has been done. Two such grouping are ABO and RH. These are widely used over the world. अब यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि जो ह्यूमन बीइंग का ब्लड होता है वो डिफरेंट होता है कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स में, ठीक है। लेकिन जब भी अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको बाहर से देखेंगे, अगर मान लीजिए आपका हाथ कटा और आपके फ्रेंड का हाथ कटा, दोनों का ब्लड होगा जो अगर हम उसको व्यू करेंगे तो वो बहुत सिमिलर लगता है आपको, रेड कलर का है, लिक्विड टाइप है। लेकिन अगर हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे तो वो डिफरेंट होगा। किस एस्पेक्ट में डिफरेंट होगा, जो हम अपनी स्टडीज के लिए यूज करते हैं, हम दो टाइप की ब्लड ग्रुपिंग यूज करते हैं, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग। और जो ये एबीओ और आरएच है ये बहुत कॉमन है वर्ल्ड में, मोस्टली आपको यही मिलेगी ब्लड ग्रुपिंग। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे एबीओ ग्रुपिंग के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे आरएच ग्रुपिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एबीओ ग्रुपिंग के बारे में पढ़ना। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन केमिकल्स दैट can induce immune response on the RBC, namely A and B. अब इसको समझते हैं, ये क्या चीज है। सपोज करिए ये आरबीसी है, अब इसके ऊपर क्या है, कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट है। क्या है, कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट है। अब सपोज करिए इसके ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, इसके ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है, इसके ऊपर दोनों प्रेजेंट है, और इसके ऊपर कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो है इसके अंदर क्या है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी एंड नो एंटीजन। तो ये जिसके पास जोन सा एंटीजन होता है वो ब्लड ग्रुप होता है। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए ब्लड ग्रुप। ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप। ये कौन सा हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप। और ये कौन सा हो गया, जिसके अंदर दोनों कोई भी एंटीजन नहीं होता, वो ब्लड ग्रुप को बोलते हैं हम ओ ब्लड ग्रुप। अब सपोज करिए ये हमने पता कर लिया ब्लड ग्रुप। अब जिस ब्लड ग्रुप के पास, सपोज करिए ए ब्लड ग्रुप है, उसके पास एंटीजन ए है, तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी बी। सेम यहाँ पे क्या होगा, एंटी ए। इसके पास एंटीजन ए बी है और बी भी है, तो इसके पास क्या होगा, नो एंटीबॉडी। अब इसके पास एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसके पास क्या होगा, एंटी ए बी होगा इसके पास, और इसके पास क्या होगा, एंटी बी भी होगा। अब सपोज करिए इसके पास क्या एंटीबॉडी बी के लिए, इसके पास बी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी है। तो सपोज करिए अगर इसके पास एंटीबॉडी बी एंटीजन के लिए है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होगा, ए, क्योंकि अगर बी होता तो बी को ये खत्म कर देता। सेम केस इस वाले के साथ, इसके पास बी है तो ए की क्या है, एंटी, और इसके पास ए और बी दोनों है, तो मतलब कोई भी एंटी नहीं है, अगर होती तो वो एब्सेंट होता वहां पे। अब सपोज करिए इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो इसके पास कोई भी एंटीजन ही नहीं सपोज, तो फिर इसमें क्या हुआ होगा, इसके पास दोनों एंटी होंगी। जब दोनों एंटी है इसके पास, तो कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं हुआ होगा। अब ये जो ब्लड ग्रुपिंग है हम क्यों करते हैं, हमें क्यों जरूरत है ये चीज करने की, हम क्यों नहीं, मतलब क्यों छोड़ते हैं, या हमें क्यों पढ़ना है ये, क्या मतलब है इसका। तो इसका मतलब होता है जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जब ब्लड एक जने से लेके हम दूसरे जने के अंदर अगर ब्लड डालते हैं, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये मेथड। तो क्या होता है, सपोज करिए
ए ब्लड ग्रुप है, उसके पास क्या एंटीजन ए है और एंटीबॉडी क्या है बी। सेम बी के पास क्या है, बी एंटीजन एंटीबॉडी ए बी के पास दोनों एंटीजन लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। ओ के पास एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों है। अब इनका काम क्या होता है, कभी हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो हमें सिमिलर ढूंढते हैं एंटीजन, हमें सेम एंटीजन्स में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ब्लड। अब सपोज करिए कि ओ ब्लड ग्रुप है, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को, जो भी ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं दीज आर यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, क्यों, एंटी ए है तो बी को दे सकते हैं, एंटी बी है तो ए को भी दे सकते हैं, एंटी ए बी है तो ठीक है ए बी को भी दे सकते हैं। लेकिन जो ए बी है, ए बी क्या है, दीज आर यूनिवर्सल रेसिपेंट। ये क्या करते हैं, किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ओ ब्लड ग्रुप ओ से ही लेगा, ठीक है, लेकिन जो ए बी है वो किसी से भी ले सकता है। अब फॉर एग्जांपल देखिए आप, ए है तो ही इधर ले लेगा ए से, बी है तो बी से भी ले लेगा, ठीक है। अब ये चीज समझ गए। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन्स टू नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन्स produced in response to the antigen. The distribution of antigen and antibody in the four blood group is A, B, AB and O are given in the table. You probably know that during blood transfusion any blood cannot be used. The blood of donor has to be carefully matched with the blood of the recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping, destruction of RBCs. The donor compatibility is shown. अब सपोज करिए ये ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो किस किस से ब्लड ले सकता है, ये ए से ले सकता है और ये ओ से ले सकता है। देखिए ओ आपको सब में मिलेगा, तो ओ क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर। और जो ए बी के केस में है, ए बी के केस में आपको सारे डोनर मिलेंगे, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्या यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है। एक ए वाला ब्लड ग्रुप किस किस से ले सकता है, खुद के ब्लड ग्रुप से ले सकता है, ए से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, क्योंकि ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। वैसे बी क्या है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। लेकिन जो ए बी है वो ए बी वाले से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और जो लेकिन जो ओ वाला है वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब सपोज करिए हमने ए वाला ब्लड ग्रुप है जो ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, लेकिन हमने इसके अलावा इसमें बी डाल दिया। अब बी डाल दिया तो क्या होगा, बी के पास क्या थी, एंटीबॉडी ए के खिलाफ थी, तो उसके ब्लड के अंदर जो पहले से थोड़ा बहुत ब्लड होगा, सपोज करिए उसको ब्लड लॉस हुआ, जब ब्लड लॉस हुआ लेकिन उसकी बॉडी में भी कुछ अमाउंट का ब्लड प्रेजेंट था। अब जब ब्लड प्रेजेंट था तो उसके खिलाफ क्या हो गया, एंटीजन ए है उसके पास। जब एंटीजन ए के पास एंटीबॉडी ए जले जाएगी तो क्या हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी और ब्लड खत्म हो जाएगा, तो डेथ भी हो सकती है इसमें पेशेंट की। From the above mentioned table, it is evident that O blood can be donated to person with any blood group, and hence O group individuals are called universal donors. Person with AB group can accept blood from persons with AB as well as from the other groups of blood. Therefore, such persons are called universal recipients. ये चीज़ मैंने आपको बता दी, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं आरएच ग्रुपिंग। आपने कभी किसी का ब्लड ग्रुप सुना होगा, ए बी ओ। इसके साथ साथ आपने सुना होगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, या फिर आपने देखा होगा ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो ये क्या होता है, ये रीजस ग्रुपिंग बोलते हैं इसको हम। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन है ये हमको कहाँ से मिलता है, मिलता है हमको रीजस ग्रुपिंग से। अब ये रीजस नाम कहाँ से आया,
ठीक है, अब हम पहले तो हमने ये चीज समझ ली ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। अब देखिए सपोज करिए जैसे कि एंटीजन थे हमारे पास, ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, और हमारे पास ये एंटीजन प्रेजेंट थे हमारे पास। ए बी को ग्रुपिंग के अंदर हमने पढ़ा इसके बारे में। उसी के जैसा एक एंटीजन और होता है, उसको हम बोलते हैं रीजस एंटीजन, हमने नाम दिया उसको, आर एच एंटीजन बोल देते हैं हम। अगर जिसके अंदर रीजस एंटीजन प्रेजेंट होता है, सपोज करिए रीजस एंटीजन जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको तो हम बोल देते हैं पॉजिटिव, और जिसके अंदर रीजस प्रेजेंट नहीं होता तो उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब ये नाम रीजस कहाँ से आया? तो जो रीजस है, रीजस एक तरीके का क्या होता है, मंकी है। इसको बोलते हैं हम रीजस मैकोए। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी बोलते हैं इनको हम। अगर इसका हम लैटिन नाम देखें तो इसका नाम है मकाका मुलाटा। ओके, ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी बोलते हैं इसको, एंड इट इज लिस्टेड एज लीस्ट कंसर्न इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। तो पहली बार क्या होता है, ये रीजस जो फैक्टर था ये हमें इस इन मंकियों के अंदर हमें मिला था, इसलिए इसका नाम, इस एंटीजन का हमने रीजस नाम रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है मोस्टली। अनदर एंटीजन RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रीजस मंकी, hence RH is observed on the surface of RBC of majority of humans। एनसीईआरटी कह रही है कि 80% ऑफ ह्यूमंस के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो ब्लड क्या हो जाएगा उसमें, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं होगा, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव। Such individuals are called RS positive, and those who don't have this antigen are called RS negative. An RH negative person, if exposed to RH positive blood, will form specific antibodies against the RH antigen। अब यहाँ पे एक चीज समझिए आप कि क्या कहते हैं, कि जो सपोज करिए हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया किसी का, अगर हमने RH पॉजिटिव वाले ब्लड को RH नेगेटिव का ब्लड दे दिया, कि अगर हमने RH पॉजिटिव वाले ब्लड को RH नेगेटिव का ब्लड दे दिया, तो क्या हो जाएगा कि जो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव है उनके बीच में क्या हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, और उसके खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटीबॉडीज बन जाएंगी बॉडी में, और वो क्या हो जाएगी आगे जाके रिएक्शन, और जब रिएक्शन होगी तो क्या करेगी, डिस्ट्रॉय। Therefore RH group should also be matched before transfusion। इसलिए क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त एबीओ ग्रुपिंग के अलावा RH ग्रुपिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसको भी मैच करना चाहिए ट्रांसफ्यूजन से पहले। A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of a pregnant woman with RH positive blood of fetus। अब एनसीईआरटी कह रही है ये एक स्पेशल केस है, RH इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं उसको, या मिसमैचिंग बोलते हैं। सपोज क्या होता है कि सपोज करिए एक वुमेन है, वो प्रेग्नेंट है। अब जब वो वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर जो बेबी है उसके अंदर जो ब्लड है वो क्या है, RH पॉजिटिव ब्लड, लेकिन जो मदर का ब्लड है वो क्या है, RH नेगेटिव। नॉर्मली क्या होता है कि जो जब डिलीवरी होती है, फर्स्ट चाइल्ड में दिक्कत नहीं आती प्रेगनेंसी में, क्योंकि एंटीबॉडीज बनती नहीं है। अब सपोज करिए ड्यूरिंग डिलीवरी जब बेबी और मदर का ब्लड मिक्स हो गया, तो ब्लड क्या पहुंच गया मदर के में, तो मदर के अंदर क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज बन जाएंगी, किसके लिए, RH पॉजिटिव के लिए। अब सपोज करिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब फिर दोबारा से हुई, जब वुमेन को सेकंड प्रेगनेंसी हुई, तो जब RH पॉजिटिव के लिए उसकी एंटीबॉडीज उसके पास है, और जो बेबी है वो फिर से क्या हो गया, RH पॉजिटिव। तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएंगी, और बेबी जो होता है उसको सीवियर एनीमिया हो सकता है, उसको सर्टेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और इवन डेथ भी हो सकती है बेबी की। सो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम शुरू में ही हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सर्टेन इंजेक्शन दे देते हैं वुमेन को ड्यूरिंग डिलीवरी। फर्स्ट बेबी की जब डिलीवरी होती है उसी टाइम हम सर्टेन इंजेक्शन दे देते हैं, जो वो एंटीबॉडीज फॉर्म होने वाली होती है उनको न्यूट्रलाइज कर देती है, ताकि जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो तो उसमें भी मदर को कोई दिक्कत ना हो।
Rh antigen of the fetus do not get exposed to the Rh negative blood of the mother in the first pregnancy as the two blood are well separated by placenta. Same चीज NCERT बोली. However, during the delivery of the first child, there is possibility of exposure of maternal blood to small amount of Rh positive blood from the fetus. NCERT कह रही है कि जब बेबी और मदर है, जब वो बेबी मदर की वूम में है, तो उन दोनों का ब्लड मैच नहीं होता या आपस में मिलता नहीं है. क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा उसको सेपरेट करके रखता है. लेकिन जब प्रेगनेंसी खत्म होने वाली होती है, जब डिलीवरी होने वाली होती है बेबी की, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, स्मॉल अमाउंट बेबी का ब्लड अब मदर का ब्लड कांटेक्ट में आ सकता है. अब जब वो ब्लड कांटेक्ट में आता है तो क्या हो सकता है, मदर के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बन सकती हैं. इन सच केस द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आरएच एंटीजन इन द ब्लड. In case her subsequent pregnancies, the Rh antibodies from the mother can leak into the blood of the fetus Rh positive and destroy the fetal RBC. This could be fatal, or the fetus could cause severe anemia and jaundice to the baby. This condition is known as erythroblastosis fetalis. This can be avoided by administration of anti-Rh antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. एनसीईआरटी कह रही है जो कंडीशन है इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडीज डिलीवरी के टाइम पे मदर के अंदर क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गई आरएच ग्रुप है. अब आगे बढ़ते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड. कोगुलेशन ऑफ ब्लड अगर आपको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाके आप ढूंढ सकते हैं वीडियोस. उसमें मैंने ब्लड के बारे में, हीमोस्टेसिस के बारे में और कोगुलेशन के बारे में 3 अलग अलग वीडियोस में बता रखा है बहुत डिटेल में, तो आप वो वहां जाके पढ़ सकते हैं. लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ जो जो एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है. लेकिन इन केस आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वहां से मेरी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोस देख सकते हैं. You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually, the blood stops flowing after some time. Do you know why? Blood exhibits coagulation of clotting in response to an injury or trauma. यह एनसीईआरटी पूछ रही है कि जब आपकी उंगली कटती है या आपको कोई चोट वगैरह लगती है तो उस टाइम आप देखते हैं कि आपका उंगली कटती है तो खून निकलता है. वो ज्यादा टाइम तक नहीं निकलता, कुछ टाइम बाद वो निकलना बंद हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ब्लड है उसके अंदर कुछ ऐसी मैकेनिज्म है या कुछ ऐसे प्रोसेस हैं, कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ब्लड होता है वो फ्लो ना रुक जाता है. दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. एनसीईआरटी कह रही है कि ये जो मैकेनिज्म है इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड है, ब्लड लॉस ना हो जाए आपको ज्यादा बॉडी के अंदर से, तो उसको प्रिवेंट करता है. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of cut or injury over a period of time. It is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads called fibrins in which dead and damaged formed elements of blood are trapped. यहाँ एनसीईआरटी कह रही है कि कभी आपने देखा होगा कि आपको चोट लगती है जहाँ पे, तो आप देखते हैं रेड रेड कलर का एक पपड़ी टाइप का सब्सटेंस जम जाता है. तो वो मोस्टली क्या होता है, वो फिब्रिन होता है. अब ये फिब्रिन क्या है, ये फिब्रिन क्या है, ये फिब्रिन क्या है, ये एक तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके साथ बहुत सारे ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आके जम जाते हैं. Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogens in the plasma by the enzyme thrombin. यह एनसीईआरटी कह रही है कि जो फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन से बनता है फिब्रिन. कौन से एंजाइम की मदद से? थ्रोम्बिन की मदद से. ठीक है. Thrombin in turn are found from the another inactive substance present in the plasma called prothrombin. अब यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि ये जो थ्रोम्बिन है ये भी एक इनएक्टिव सब्सटेंस से बनता है, उसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है. An
एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। और प्रोथ्रोम्बिन के कन्वर्जन के लिए, प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम रिक्वायर होता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन दैट इज द कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, ये कह रहे हैं कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो उसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है, इसको हम बोलते हैं कोगुलेशन प्रोसेस, कैस्केड प्रोसेस। बेसिकली इसको हम बोलते हैं कोगुलेशन कैस्केड। ये जो कोगुलेशन कैस्केड होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, सर्टेन जैसे आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में लिंक करते हैं जो एक दूसरे के रिएक्शंस में। जब वो एक दूसरे की रिएक्शंस में लिंक करते हैं, वो एट लास्ट जो आपको रिजल्ट मिलता है वो मिलता है क्लॉटिंग का। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने अपनी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोस में डिटेल में पढ़ा रखा है बहुत ज़्यादा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपका मुश्किल से आधा घंटा लगेगा आपका 3 वीडियो में, वो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। An injury or trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activates the mechanism of coagulation. Certain factors released by the tissue at the site of injury can also initiate coagulation. Calcium ion plays a very important role in coagulation or clotting. ठीक है, ये थी एनसीईआरटी की बात। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, आप वहां से पढ़ सकते हैं कोगुलेशन या क्लॉटिंग के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं टिश्यू फ्लूइड के बारे में, लिम्फ के बारे में। हमने उस शुरू में पढ़ा था कि ब्लड के अलावा एक और बॉडी फ्लूइड होता है लिम्फ, जो कि न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। As the blood passes through the capillaries and tissues, some water along with many small water-soluble substances moved out into the spaces between the cells of the tissue, leaving the large proteins and most of the formed elements in the blood vessel. This fluid released out is called the interstitial fluid or tissue fluid. It has the same mineral distribution as that in plasma. Exchange of nutrients, gases, etc. between the blood and the cells always occur through this fluid. An elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid and drain it back to the major veins. This fluid present in the lymphatic system is called the lymph. Lymph is colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for immune response of the body. Lymph is also an important carrier for nutrients, hormone, etc. Fats are absorbed through lymph in the lacteals present in the intestinal villi. जो लास्ट लाइन है, फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ्स इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विलाई, इसके बारे में आपको मैंने क्रिप्स ऑफ लेबरकून में समझाया था डाइजेशन चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे क्या रही है, एनसीईआरटी ने क्या कहा है, एनसीईआरटी ने कहा है बेसिकली कि जो लिम्फ है, जो लिम्फ है वो ब्लड के अलावा भी हेल्प करता है। ब्लड जैसे ब्लड हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में, लिम्फ भी हेल्प करता है। अब जो लिम्फ है, लिम्फ अलग वेसल्स में चलता है, इसका अलग से एक सिस्टम है, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ लिम्फ क्या करता है, लिम्फ जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको उठा के या वेस्ट प्रोडक्ट उठाता है कई जगह से, तो उसको कहाँ पे जाके ड्रेन कर देता है, वेन्स के अंदर। वेन्स के अंदर हमको पता है क्या होता है, मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उस ब्लड को क्या होता है, प्योरीफाई होना चाहिए होता है, और क्या होना होता है, उसको ऑक्सीजनेट होना होता है ताकि वो बाकी बाद में टिश्यूज में चले जाए। ठीक है, और जो लिम्फ है ये एक तरीके से बहुत एलाबरेट नेटवर्क है वेसल्स का, जो बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। इन वेसल्स को बोलते हैं हम लिम्फ या लिम्फेटिक वेसल्स। और जो लिम्फ है वो एक कलरलेस सब्सटेंस है, और इसके अंदर स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो हमको इम्यून रिस्पॉन्स करने में हेल्प करते हैं, जो हमारी बॉडी इम्यूनिटी होती है वो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लिम्फ। Now let's talk about the circulatory pathways. There are basically two types of circulatory pathways. We have the open and the closed. The circulatory patterns are of two types, open or closed. Open circulatory system is present in the arthropod and molluscus, in which blood is pumped by the heart passes through the large vessels into an open spaces or body cavities called sinus. Annelids and chordates have a closed circulatory system in which the blood pumped by the heart is always circulated through a closed network known as the blood vessels. This pattern is considered to be more
advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है कि दो तरीके की आपको सर्कुलेटरी पैटर्न्स या पाथवे मिलेंगे, ओपन और क्लोज। जो ओपन है वो किस में प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोड और मोलस्कस में। ये एग्जांपल याद रख लीजिएगा, इसको आप से क्वेश्चन में पूछ सकता है एनिमल किंगडम के अंदर। तो ये जो ओपन है इसका काम क्या होता है कि एक लार्ज वेसल होती है इसके पास एक ओपन स्पेस के अंदर या फिर बॉडी कैविटी के अंदर, उसको बोलते हैं हम साइनस। लेकिन क्लोज्ड के अंदर क्या होता है, ये किस क्लोज प्रेजेंट होता है एनालिट्स और कॉर्डेट्स के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क होते हैं वेसल्स के, और वो एक तरीके से क्लोज्ड होता है। और वो मोस्टली काय को कौन उसको पंप करता है, हार्ट एक ऑर्गन है जो उसको पंप करता है ब्लड को, जो सर्टेन बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। Not like the open one, which do not possess certain structures which pump the blood into the different parts of the body, as in the case of the annelids and chordates. All vertebrates possess a muscular chambered heart. एनसीईआरटी कह रही है सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर मसल्स का हार्ट होता है जिसके डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। फिशेज हैव टू चैम्बर्ड हार्ट विद अ सिंगल एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एनसीईआरटी ने कहा है कि फिश के अंदर क्या होता है, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो इसके पास क्या है, टू चैम्बर्ड हार्ट, एक चैम्बर ये एक चैम्बर ये। Amphibians and the reptiles except crocodile have a three-chambered heart with two arteria and a single ventricle. अब एनसीईआरटी कह रही है कि जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल्स, उनके पास क्या होता है, दो एट्रिया होती है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल। कितने चैम्बर हार्ट हो गया, थ्री चैम्बर। Whereas crocodiles, birds and mammals possess a four-chambered heart with two atria and two ventricle. अब यहाँ एनसीईआरटी बोली कि जो ह्यूमंस हैं या क्रोकोडाइल है या बर्ड्स हैं, उनके पास क्या होता है, उनके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। वी हैव राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वी हैव राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। दीज आर फोर चैम्बर्ड हार्ट। ओके। In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart. This is single circulation. अब एनसीईआरटी कह रही है कि जो फिश है, फिश के पास हमने देखा कि फिश के पास क्या है, दो चैम्बर हार्ट है, एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। अब क्या होता है कि जो हार्ट है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को पंप कर देता है, और जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेट कौन करता है, गिल्स। गिल्स क्या है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है फिशेस के अंदर। तो क्या करता है, उसको ऑक्सीजनेट कर देता है। और जब उसको ऑक्सीजनेट कर देता है तो उसके बाद वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर सप्लाई कर दिए जाते हैं। और जब वो सारे बॉडी पार्ट के अंदर सप्लाई हो जाते हैं तो उसके बाद वो वापस से कहाँ डाल दिया जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर। सपोज करिए ये क्या एट्रियम, यहाँ से कहाँ गया, गिल्स में। अब गिल्स से कहाँ गया, बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। उसके बाद कहाँ गया, दोबारा से वेंट्रिकल में, उसका दोबारा से एट्रियम में। ठीक है, चीज समझ गया। अब एम्फीबियंस की बात करते हैं। एम्फीबियंस के अंदर, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, skin, and the right atrium gets deoxygenated blood from the other parts of the body. However, they get mixed up in the single ventricles which pumps out the mixed blood, that is incomplete double circulation. अब जो फिशेस थी उसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन थी। सिंगल सर्कुलेशन क्यों थी कि एक ही एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है, एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, सेम केस विद दी वेंट्रिकल्स। लेकिन जो आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर क्या हमने पढ़ा था, थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। तो उसके अंदर क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों है कि जो एट्रियम है, जो राइट और लेफ्ट एट्रियम है, उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सेपरेटली। लेकिन जब वो ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल्स के अंदर तो वो क्या होता है, मिक्स। अब जब वो मिक्स हो जाता है तो उसका हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। लेकिन अगर हम बात करें बर्ड्स और मैमल्स की,
इसके अंदर हमको मिलता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, या हम बोल देते हैं इनको डबल सर्कुलेशन। इसके बारे में आपको मैं बताता हूं अभी। पहले इसको रीडिंग कर लेते हैं इसकी। इन birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and the right atrium respectively passes on to the ventricles of the same side. The ventricles pumps the blood it without any mixing up. That is, two separate circulatory pathways are present in these organisms. Hence, these animals have double circulation. Okay. अब पढ़ते हैं हम थोड़ा ह्यूमन हार्ट के बारे में। अब सपोज करिए ये है आपका राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट सॉरी राइट एट्रियम, सॉरी ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है, नॉर्मली 4 चैम्बर हार्ट है। अब ये जो राइट एट्रियम है इसके अंदर क्या आता है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। और जब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है तो ये उसको कहाँ पंप करता है, ये उसको पंप करता है राइट वेंट्रिकल में। और जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड पंप होता है, राइट वेंट्रिकल इसको फर्दर ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में भेजता है, और लंग्स इस ब्लड को कहाँ भेजती है, लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ क्या था, तो इसको हम मार्क करते हैं ब्लू से। ओके, deoxygenated blood is with blue. Here we have deoxygenated blood. Deoxygenated blood कहाँ गया, लंग्स में ऑक्सीजनेट होने। रेड कलर इज फॉर दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ कौन सा ब्लड है, यहाँ है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट्स में, और फिर यहाँ से दोबारा राइट एट्रियम में। आप समझिए, देखिए राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड। वो ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ, उसके बाद कहाँ पे आया, वो लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ गया, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। उसके बाद यहाँ क्या गया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, और वो कहाँ गया, राइट एट्रियम में। दीज आर दी cycle of the blood. We will talk about the pathway of the blood in the human body in detail. And this was all about the today's video. And in the next video, we will talk about the human circulatory system. We will talk about the ECG, electrocardiogram. We will talk about the cardiac cycle. We will talk about the regulation, and we will talk about certain disorders of the human circulatory system. So guys, it's a request to all of you that please do subscribe to our channel, as it costs a lot of hard work in making these videos. Please do hit the subscribe button and follow us on different social media platforms. Link for the same is in description below, and in the description I will provide the link for the whiteboard animation videos of the coagulation cascade, clotting factors, and hemostasis. Thank you for watching. Goodbye.